So we were discussing the application of Wronskian to prove linearly independent solutions. So this is a theorem that if coefficients are continuous functions on some interval AB and we have two solutions y1 and y2 of homogeneous equation, then these solutions are linearly independent if and only if W is not vanishing on that interval. So we can prove it in two ways. One way we have discussed yesterday. So let us start with another way. So firstly, we assume that y1 and y2 are linearly independent solutions on interval AB of homogeneous equation. So then we need to prove that Wronskian is non-zero. And from Abel's formula, we know that if Wronskian is non-zero at one point, then it will be, if it is zero at one point, then it will be zero for all. So if it is non-zero at one point, then it will be non-zero at all points. So, so we show that Wronskian of y1, y2 at one point x naught, this is non-zero. Okay. So on the contrary, so we assume that this Wronskian is zero at some point x0. Now since y1 and y2 are solution of homogeneous equation, so so is the lin so y1 and y2 are solution, so there is linear combination, that is also solution for homogeneous equation. ओके अब ये solution है तो for every point तो ये solution x नॉट पे भी होगा. ओके so compute this at x नॉट. मैं राइट साइड को पहले लिख रहा हूँ और ठीक है y एट एक्स नॉट लेफ्ट को राइट में लिख रहा हूँ. और इसको अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो भी ट्रू रहेगा. c1 y1 डैश x नॉट प्लस c2 y2 actually I want to prove linear independence with basic definition, so I am writing the linear combination. linear combination में चेक करते हो ना आप, अगर c1 c2 जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा. ओके सो तो x नॉट पे कंप्यूट कर लो ये वैल्यू सॉल्यूशन का और डेरिवेटिव. सो यू हैव ए 2x2 सिस्टम इन c1 एंड c2. अब ये तो वैल्यू फिक्स कर दिया ना आपने, y1 का वैल्यू एक फिक्स पॉइंट पे, y2 का वैल्यू फिक्स पॉइंट पे. ओके सो वी हैव ए 2x2 सिस्टम इन कांस्टेंट c1 एंड c2. ठीक है.
और इसको थोड़ा सा हम इस वे में मॉडिफाई कर सकते हैं. डोंट राइट इट. Wronskian is 0. So, okay, so just modify it. Wronskian is 0. So actually 0 भी solution है ना homogeneous का. 0 solution है ना, तो linear combination लिखा मैंने. So actually we want to apply existence and uniqueness theorem. एक तो कल हमने वे डिस्कस किया था, वो भी यूज कर सकते हो y2 by y1 वाला. But you can apply, you can also apply existence and uniqueness theorem. So you can write c1 y1 plus c2 y2 and अब ये होमोजीनियस सिस्टम बन गया आपके पास. अब होमोजीनियस सिस्टम अगर आप देखते हो, ये सिस्टम लिखते हो होमोजीनियस ax equals to 0 system of equations. So this system always have trivial solution x equal to 0, यानी कि c1 c2 0 solution तो trivial होगा इसका. बट यहाँ पे जो कंडीशन है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा सिस्टम का. नॉन, जब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 हो, यानी कि ए इनवर्टिबल ना हो. अगर ए इनवर्टिबल ना हो तो इसका मीनिंग क्या है, जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, अब आप चेक कर सकते हो जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा. सो दिस सिस्टम, मतलब c1 c2 में दिस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन सिंस रॉन्स्कियन. अब रॉन्स्कियन का वैल्यू क्या होगा, y1 y2, that will be y1 y2 prime minus y2 y1 prime. अब रॉन्स्कियन उसने, यानी कि जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट भी यही बनेगा, रॉन्स्कियन उसने दे रखा है 0. सो दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. एंड आल्सो दीज इक्वेशन, जो ऊपर हमने इक्वेशंस लिखी हैं, उनका मीनिंग क्या है, मैंने वैसे राइट हैंड साइड पहले लिख दिया था यहाँ पे y x नॉट. ठीक है. अब यानी कि y x नॉट क्या बन गया, 0, एंड y डैश x नॉट दैट इज आल्सो 0. So by existence and uniqueness theorem, अब फंक्शन हमने एक पढ़ा था ना पीछे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब y भी 0 है, इसका डेरिवेटिव भी 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 0 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो y विल बी 0. अब y को मैंने क्या लिखा है, ये लिखा था c1 y1 प्लस c2 y2 दैट इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए सॉल्यूशन नॉन जीरो है, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन, सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपको कि c1 नॉन जीरो है, c2 भी नॉन जीरो है, बट स्टिल यू हैव दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0. So this implies y1 and y2 they are linearly dependent, a contradiction. Therefore Wronskian at one point that will be non-zero.
दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। वैसे आप कल वाले वे में भी कर सकते हो, दैट इज द स्मॉलेस्ट वे। जस्ट राइट y2 बाई y1 डैश लिखा था ना हमने कल, उस वे से भी प्रूव कर सकते हो। बट इसमें जब रिवर्स वे में प्रूव करोगे, सो कन्वर्स जब प्रूव करोगे, सो सपोज दैट Wronskian is non-zero at वन पॉइंट ले लो आप, फिर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो इनको। तो आपके पास so for x0 belongs to that interval AB, we have system of equations C1 Y1 अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, यानी कि जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉन जीरो। ओके, सो सिंस रॉन्स्कियन और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, इसका मीनिंग क्या होगा? सो दिस सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। So therefore, trivial solution होने का मीनिंग क्या है? C1 C2 they will be zero. So this implies, अपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, C1 C2 जीरो हैं, so Y1 and Y2 are linearly independent. Sir, can you please move to the previous slide? Okay. जो हम कल प्रूफ डिस्कस कर रहे थे उसमें थोड़ा सेकंड पार्ट डिफरेंट वे में डिस्कस करना पड़ेगा, बट अगर आप ये लिखते हो तो दोनों पार्ट सिमिलर हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपने रॉन्स्कियन को जीरो लिया, तो सिस्टम, तो जो C1 C2 में जो सिस्टम बन रहा है दैट विल हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, दैट विल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। और ये तो आप मानते हो ना कि आपने ये पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अगर इनवर्स पॉसिबल है तो आपका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट दैट विल बी जीरो, सो टू गेट नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट में नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या कह देगी कि आप C1 C2 तो नॉन जीरो हैं बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, सो दिस मींस Y1 एंड Y2 दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। और सेकंड में हमने कॉन्ट्ररी प्रूव किया है, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन अज्यूम किया, रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा, सो C1 C2 विल बी जीरो। तो यहाँ पे वैसे आपने ये रॉन्स्कियन लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा। So these are two important facts. So this says that if Wronskian is non-zero, then functions are linearly independent. अब हमने किस सेंस में लिखा है? सॉल्यूशन की सेंस में।
तो आपका रिजल्ट दोनों वे में प्रूव है। Wronskian नॉन जीरो, तो सॉल्यूशंस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो Wronskian नॉन जीरो होगा। सेकंड है इफ फंक्शंस, तो मेन रिजल्ट है इफ फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट देन Wronskian इज जीरो, बट Wronskian अगर जीरो हो, this does not always implies that functions are linearly dependent. This is important. So if Wronskian is zero, then this does not imply that functions are linearly dependent. So they can be linearly independent. तो देखो कॉन्सेप्ट को मिसमैच नहीं करना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फंक्शन तो कोई भी हो सकते हैं ना, आप कहीं भी आप एल आई एल डी अलजेब्रा में भी पढ़ते थे ना, बट जरूरी नहीं कि वो फंक्शन सॉल्यूशन हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अगर सॉल्यूशन है तो रिजल्ट दोनों वे में ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ है। बट जनरल रिजल्ट ये है अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो बट दे आर नॉट सॉल्यूशन, सो Wronskian जीरो, this does not always imply that functions are linearly dependent. इसका एक एग्जांपल है, you can solve it although it is not related with the differential equation. So let us take two functions, y1 x square mod x and y2 is x cube. Calculate their Wronskian. Can you calculate their Wronskian? Let us say on some domain -1 to 1, or you can, there is no problem, you can calculate on full real line. अब Wronskian में डेरिवेटिव चाहिए ना, तो जीरो में प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट, बोथ आर डिफरेंशिएबल। तो कैसे लिखोगे फंक्शन को? आप इस वे में भी लिख सकते हो इनको, y1 minus x cube, x is negative and this is x cube, so for x positive Wronskian y1 prime, y2 prime, so you can write x cube पॉजिटिव में लिखोगे, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दोनों ही x क्यूब हैं, दिस इज जीरो, और x नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या आएगा, -x क्यूब -3x स्क्वायर, दिस इज x क्यूब, then it is also zero. So you can say Wronskian of y1 y2 is 0 for every x in, or you can say these functions are, क्या कहोगे इनको, क्या ये एलडी हैं? नो सर। क्यों नहीं है? ये मतलब कि पॉजिटिव डोमेन पे तो एलडी है, पर ये जो जीरो इंक्लूड है ना, तो यहाँ पे तो एल आई है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा जो कांस्टेंट मल्टीपल के लिख सकते हैं एक दूसरे। So but these functions
are linearly independent on any interval containing 0. So if you write their linear combination, तो C1 C2 क्या आएंगे, कैसे लिखोगे बताओ? बोलो। ठीक लिखा मैंने स्टेटमेंट? ओके, वेरीफाइड। यस सर। तो हाँ, अगर सोल्यूशन डिफरेंट, अब ये सोल्यूशन तो नहीं है ना y1 y2, अगर यस सोल्यूशन सर। अगर सोल्यूशन होते हैं तो फिर आपका रिजल्ट बोथ वे में ट्रू है। So now I summarized all the facts that you have studied here. So let us say you have a homogeneous equation. Then the following statements are equivalent for this homogeneous equation. Equivalent means either all are true or all false. So first is general solution, जो हमने लिखा था वो था C1y2 plus C2y2। सेकंड, अगर आप ये बोलते हो कि y1 y2, so this set is a fundamental set, of solutions, or you say these two functions are linearly independent. On some interval AB. So the Wronskian of y1 y2 is non-zero at some point, or you say Wronskian of y1 y2, this is non-zero for every point, for every x in some AB. So either you say fundamental set of solution, general solution, linearly independent, Wronskian is non-zero at one point and all or points. All these statements are equivalent. So they have same meaning. And this is only true for linear equations. Linear homogeneous, इसके लिए है ये. Okay? Next method is that maybe you already know, that is a reduction of order. So if we know one solution of homogeneous equation, then you can construct another solution from first, and this procedure is called reduction of order. Reduction of order means that you have a second order equation and we will convert it into first order equation and then you integrate first order. Okay, so we reduce second order into first order and it is easy to solve first order equations. अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कहीं भी पढ़ोगे ओडी पीडी सब जगह आपने इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल गो टू फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट ऑर्डर में जाके कन्वर्ट करके वहां पे सॉल्व करोगे फर्स्ट ऑर्डर को। इवन पीडी सॉल्व करते हो आप, पीडी आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स,
उसमें भी ओडी सॉल्व होती है फर्स्ट ऑर्डर। तो बेसिक इंटीग्रेशन करना है, so somehow we will try to reduce higher order into first order. So the method क्या है? So let y1 be any solution of this equation, then we try to construct another linearly independent solution from y1. For this we assume that y2 has form some unknown function v times y1. ये हमने assume किया है. We will try to find v, and if y1 and y2 are linearly independent, then you can write general solution. So in order to find y2, differentiate it twice, fit in equation and then simplify. ठीक है? अब y2 solution है ना, अगर y2 solution है तो y2 satisfy करेगा equation को. Let y2 be another solution. Solution है तो क्या लिखोगे? So y2 will be satisfied. So therefore y2 v y1 था तो y2 प्राइम निकाल लो वहां पे, v y1 प्राइम प्लस v प्राइम y1, y2 डबल प्राइम v y1 प्राइम y1 डबल प्राइम plus 2, just differentiate it twice, then fit in equation. So fit these two value here, simplify it. ठीक है, दोनों वैल्यू फिट कर दो. सिंप्लीफाई करना है आपने, v वाली टर्म कलेक्ट कर लो, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन. v वाली टर्म, v डैश वाली टर्म और v डबल डैश वाली टर्म. अब y1 भी सोल्यूशन है तो ये टर्म क्या बन जाएगा? दिस विल बी 0. Since y1 is a solution, so y1 also satisfy the given homogeneous equation, so this term will be 0. Therefore you have v double prime y1 plus v prime. Okay, अब ये somehow वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे. v डबल प्राइम, v वाले एक साइड कर लो आप और इनको इस साइड कर लो. ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है ना, इसको आप t फिट कर लो तो लॉग आ जाएगा, लॉग v डैश. सेम राइट हैंड साइड में y1 का डेरिवेटिव ऊपर है, y1 प्राइम. ओके, सो लॉग y1. अब p तो कोफिशिएंट है, दिस इज अननोन, सो वी विल इंटीग्रेट. तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में बन गया ना, अब इंटीग्रेशन आसानी से हो गया. यहाँ से v डैश का वैल्यू कंप्यूट कर लो. अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके लॉग, आप इसको लिख सकते हो लॉग y1 पावर -2 माइनस p dx. चाहे आप लेफ्ट में ले जाओ इसको, अगर लेफ्ट में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे.
अब log mn आप यूज कर सकते हो ना, तो यहाँ से आ जाएगा v डैश इक्वल्स टू 1 बाई y1 स्क्वेयर, वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा p dx। तो v का वैल्यू क्या होगा, इंटेग्रल 1 बाई y1 स्क्वेयर e पावर माइनस p dx then dx। So somehow in v you have a first order equation, so we have reduced the order, so by solving this first order equation you can find v। अब v मिल गया तो आपको solution मिल गया, and here you can check that y1 and y2 they are linearly independent। linearly independent क्यों है, क्योंकि इनका जो Wronskian है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ये नॉन जीरो होगा। अब क्यों होगा, अब y2 क्या था, y2 डैश का वैल्यू फिट कर दो, डेरिवेटिव निकाला था हमने पहले, v y1 प्लस v डैश y1, y2 है v y1। तो अब देखोगे इसमें v y1 ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला बचेगा v डैश y1 स्क्वायर। अब v डैश का वैल्यू ऊपर पड़ा ही है, v डैश यहाँ से वैल्यू लिखोगे तो v डैश y1 स्क्वायर क्या आ गया, e पावर माइनस p dx, दैट इज ऑलवेज नॉन जीरो। So constructed solutions they are linearly independent। Okay, for example let y1 be a solution of this equation, find its general solution। So you know one solution y1 इक्वल टू x, और ये भी आपने ध्यान रखना है ये फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब y डैश का कोफिशिएंट 1 है, y डबल डैश का, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इक्वेशन को, डिवाइड विद x स्क्वायर, so what is px here, that is 1 by x, coefficient of y dash। तो सेकंड सॉल्यूशन को आप क्या लिखोगे, y2 equals to v of y1, where you can use directly to find this integral to find v। so y2 क्या लिखोगे आप, v y1, where v is 1 by y1 square e power minus p dx dx। so 1 by x square e power minus, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस log x, 1 by x आ जाएगा, so 1 by x cube, so minus 1 by 2x square। so second solution y2 is v y1, v y1, hence general solution is y equal to c1 first solution, c2, इसको 1 by x ही लिख रहा हूं मैं, -1 by 2 आप कांस्टेंट में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है।
बेसिक फंक्शन तो वहां पे 1/x है, 1/x है, तो ऑटोमेटिकली वैसे क्वेश्चन में था ये, मैंने मिस कर दिया, x is positive, so x is non-zero. Solution must be well defined as well. Okay, otherwise it won't make any sense. अगर 1/x होता, x belongs to r, तो जीरो पे तो डिफाइन भी नहीं है. Okay, so this is a special method to find second solution from first, and there is a special type of equation that is Cauchy-Euler. ये आपने पढ़ा होगा पहले वैसे. This is special kind of equation, ax square y double prime plus bx y prime plus cy equals to 0. ठीक है, यानी कि y डबल प्राइम के साथ x स्क्वायर हो, साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, a b c आर कांस्टेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x हो. तो इस टाइप की इक्वेशन का अगर आपने सोल्यूशन निकालना है, सो वी सब्स्टिट्यूट, इसमें ये अज्यूम करते हैं कि जो सोल्यूशन होंगे वो x की पावर r की फॉर्म में ही होंगे. अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट था तो हमने क्या अज्यूम किया था कि सोल्यूशन हमारे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सोल्यूशन होंगे वो x की पावर समथिंग की फॉर्म में होंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, एंड इट इज द बेस ऑफ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम फिट करके देखते हैं पावर x की पावर समथिंग इन इक्वेशन. तो इक्वेशन में फिट कर दो, सो ax स्क्वायर, y डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, r माइनस 1 x r माइनस 2, देन b x y प्राइम प्लस c. अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे आपने एक्सपोनेंशियल फिट किया था, तो एक्सपोनेंशियल कॉमन आके कॉमन कर सकते हो आप. वहां कांस्टेंट कोएफिशिएंट में था ना, तो यहाँ पे x पावर r फिट किया, तो अब सारी टर्म में x पावर r कॉमन आ रहा है. ये x पावर 2 माइनस, तो ये x पावर r यहाँ भी बन जाएगा. so you can take x power r common from each term. in other words you can find r. आप ये लिख सकते हो. तो जो एसोसिएटेड ऑक्सिलरी इक्वेशन है, दैट विल बी ए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए आर स्क्वायर प्लस बी माइनस ए आर प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसको वैसे हम इंडिशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, इंडिशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको. सो वी गॉट क्वाड्रेटिक इन आर. सो वी हैव 3 केसेस. ओके, अब फर्स्ट केस क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट रूट्स, let roots are r1 and r2. then solutions are, दो सॉल्यूशन मिलके तो अच्छी बात है. सॉल्यूशन क्या होंगे, x पावर r1 एंड x पावर r2. सेकंड केस है डबल रूट. रिपीटेड भी हो सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक के रूट. डबल रूट रिपीटेड, तो रिपीटेड में क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको. और अभी हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पढ़ा है, यू कैन फाइंड वन सॉल्यूशन फ्रॉम अनदर. निकाल सकते हो. तो एक सॉल्यूशन मिलकर देन x पावर r इज वन सॉल्यूशन, एंड वी कैन फाइंड another solution from first. and which is, आप चेक करना,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x पावर r log x, वेरीफाई करना v निकाल के। और थर्ड केस हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट आपको पता है हमेशा पेयर में आते हैं, तो अगर एक रूट आपका r1 दूसरा r2 है तो किस फॉर्म में होंगे? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस फॉर्म में होंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको ना रियल लिखने के लिए। तो x पावर जो r1 होगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर log x पावर r1, क्योंकि e की पावर log x क्या होता है? x ही होता है। e की पावर लिख सकते हैं हम इसको, e की पावर log x r1, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हो e की पावर log, अब r1 को यहाँ लिख सकते हो, r1 को मैं लिखा है मैंने, पावर पहले आ जाती है ना, R1 ln x है। हैं? ये लिखा है मैंने, लिख सकते हैं ना x पावर r1 को, क्योंकि e की पावर log x x ही होते हैं। तो r1 को यहाँ भी लिख सकते हो, r1 log x भी लिख सकते हो। और r1 का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा log x। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लो। रियल पार्ट होगा e पावर log x और इमेजिनरी पार्ट में आएगा, इमेजिनरी ये आ जाएगा e पावर आयोटा बीटा log x। अब e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। सो दिस इज e पावर अल्फा log x cos ऑफ बीटा log x प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा log x। सिमिलरली यू कैन राइट x पावर r2, सेम वे में लिखना है, वो ये आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, आयोटा आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो, बस सेम रिजल्ट आएगा। अब ये सॉल्यूशन इमेजिनरी हैं, ठीक है। इनसे रियल बनाना कैसे बनाओगे? इनको रियल एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आप y1 ये ले सकते हो, रियल पार्ट जो है इनका e पावर अल्फा log x cos बीटा log x, और e की पावर अल्फा log x को आप x पावर अल्फा भी लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो e पावर अल्फा log x को x पावर अल्फा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट इज x पावर अल्फा sin बीटा log x। So these are two solutions. You can calculate their Wronskian, they are linearly independent. ये स्टेप फॉलो कर रहे हो ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, आप अल्फा को यहाँ ले जाओ, e की पावर log समथिंग दैट विल बी इक्वल टू समथिंग, x पावर अल्फा बन जाएगा। बाकी आपको आपने इसको डिफरेंट वे में कॉलेज में पढ़ा होगा, आप क्या फिट करते थे? x पावर e पावर ये e पावर t फिट करते थे यूलर कॉशी इक्वेशन में, x पावर e पावर t फिट करते थे। तो so by substituting x equal to e power t, you can convert that equation into constant coefficient equation। तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे e की पावर समथिंग में, और ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। x की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग, बोथ आर रिलेटेड। हमने लिखा है यहाँ पे e पावर अल्फा log x that is x power alpha। So somehow these concepts are similar। So कॉशी यूलर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे x पावर r फॉर्म में, and you can convert, you can put a remark, we can take x equal to e power t, or you can say t equal to log x, and convert the Cauchy
Euler equation into constant coefficient equation. So I am not going into all detail of that proof that you have done in your college. Okay. So Cauchy-Euler equation also have 3 cases depending on the situation. आप ये एग्जांपल ट्राई करना. फॉर एग्जांपल सॉल्व x square y double prime minus 4xy prime plus 4y equals to 0. आप इसमें फिट करना y equal to x power r. So this will give you this equation r minus 1 minus 4r plus 4 equals to 0. तो r का 2 वैल्यू आएगा 1 और 4. तो सोल्यूशन लिख सकते हो. सोल्यूशन क्या होगा? C1 R1 x पर 2 डिफरेंट r मिल गए आपको. x पावर 1 प्लस C2 x पावर 4. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. ठीक है. सेकंड डेरिवेटिव की जगह लिख दो r माइनस 1. फर्स्ट डेरिवेटिव कोएफिशिएंट तो एज इट इज माइनस 4. x y डैश को r लिख दो और 4y को 1 कर दो यहाँ पे. और यू कैन फिट x पावर r एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई. Any doubt? So I'll stop now. Any doubt? देखो x पावर r फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम पावर सीरीज सॉल्यूशन. तो पावर सीरीज का मीनिंग है सॉल्यूशन आपको मिलेंगे x पावर r, x पावर समथिंग. तो so and this equation is the base of that method. Okay, so I'll stop now. We will continue in the next class.